Hello friends, welcome. So in this video, we will be looking at this answer booklet and you know about Jagriti Avasthi who has secured the second rank in 2020 and like in this question means in this answer booklet we will get to know like how we can improve our answer writing. Like we will have the idea like we read a lot, but when it comes to like implementing those all points while answer writing, we cannot do it. So that's how we you will build the kind of capability of like writing or understanding how should you just concise the things. You have to write in a precise way. You have to make the bullet points sometimes like charts, paragraphs, or like sometimes you have to use only 2 or 3 points to describe the whole things there. So we will get the idea of all those things here in these answers. Okay, so this is kind of that initiative that will help you in that regard. And if you are interested, you can continue watching this video, otherwise you do not have to be here at all. Okay, so I'll start the video now. So this is the question here, and you can pause the video now and just like try to what do you say, just try to decipher it, decode it, just try to write something about it. And if you don't know about the Central Information Commission, just search somewhere and just get the idea of it, and you can understand it better, means in a better way. So I'll start now. Enumerate the issues associated with the functioning of Central Information. So what is being asked here, like we have to know the issues. First we have to know what is the Central Information Commission, then we have to know like to be specific, we must know about the issues or associated that too with the functioning of it. मतलब ये काम कैसे करता है, उसके रिलेटेड क्या इश्यूज है हमें वो पता होना चाहिए. How can these issues be addressed? Now he's asking about the opinions, or means not your opinions, like some committees might have told something about this, so we have to just write those things and you can use your own points as well here. Okay, so like this stands for means it will give you around 150 words. Okay, so 10 markers question here. So like okay, so first of all, we must know the Central Information Commission here. So information is a tool to transform citizens from subjects to agents of government. ओके, सो अब ये इन्फॉर्मेशन की थोड़े से गुणगान गाए जा रहे हैं यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, कि एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है सिटीज़न को, जैसे हम जैसे नागरिक को, किसमें सब्जेक्ट्स में, जैसे प्रजा को, जिसे हम प्रजा कहते हैं ना, किंगडम जो किंग होता है उसकी प्रजा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. लेकिन अब वो किस तरीके से काम करेंगे, एजेंट्स की तरह काम करेंगे. एजेंट्स की तरह मतलब एक रॉ एजेंट के बारे में सोचिए, कोई मूवी आपने देखा होगा तो उसका काम क्या होता है, देश की रक्षा करना. इंटेलिजेंस की तरह, इंटेलिजेंट की तरह काम करता है वो, इंफॉर्मेशन को इधर से उधर निकालने के लिए. तो उस तरीके से हम काम करेंगे, हम देश की मदद करेंगे एक तरह से. सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ द नोडल एजेंसी फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक नोडल एजेंसी आपको पता है. अब क्या आप ये मुझे बताएं क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. तो क्वेश्चन का आंसर सही है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. और ये किसके अंडर बनाई गई आपको पता है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ज़रिए. ओके, मतलब ये है, वही कंप्लेंट्स वगैरह आते हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है और उसे इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट लग रही है तो उसकी चीज़ें देखता है ये. ओके, इस तरीके से काम करता है. तो नोडल एजेंसी है, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप गवर्नमेंट से जानना चाहते हैं तो उसे डेमोक्रेटिकली वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, मुहैया कराएंगे, कि उसका काम है. ओके, सो दिस इज़ द थिंग हियर. सो नाउ it has been asked about the issues, so like we have to talk about that. So recent amendment and a dilution of powers of Chief Information Commission and Information Commissioner and Information Commission. अब इसका मतलब क्या है, जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था उसका डायल्यूशन यानी क्या है, कोई चीज़ को कम कर देना, मतलब उसको श्रिंक कर देना. तो वही, तो यहाँ पे क्या किया गया था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमीशन के उनके पावर्स को क्या किया था, कम किया गया था. तो ये एक इशू है. ओके, सो टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट. तो अभी जो टेन्योर मतलब कितना कोई काम करेगा, इसमें जो भी मेंबर्स है वगैरह, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होगी, वो सारा कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. ओके, सो ये वाली बात थी. चलिए आगे देखते हैं अभी. सो एग्जीक्यूटिव मतलब रेम्यूनरेशन वगैरह भी, जो पैसे वगैरह मिलेगी, सैलरी, वो भी. सो लैक ऑफ डेडिकेटेड कैडर फॉर इंफॉर्मेशन ऑफिसर. जैसे हम यूपीएससी के लिए मतलब जो एक क्या कहेंगे हम, कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए, तो एक वैसा कैडर भी नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं. सो यहाँ पे क्या देखिए, द ऑफिशियल ओके अपॉइंटेड एज PIO आर ओवरबर्डन ड्यू टू ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब यहाँ पे जो ऑफिसर्स है
वो एक तरह से उनके ऊपर बोझ आ गया है, वो उन्हें दोहरी मतलब भूमिकाएं निभानी पड़ रही है, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है। तो ये भी क्या है, इनका प्रॉब्लम है, मतलब इशू है। लैक ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम देखिए ये पॉइंट ना हम ज़्यादातर में, आप देखिए अगर आपने सारे वीडियोस देखे तो आपने ये बात गौर की होगी कि ज़्यादातर टॉपर्स ना ये डिजिटाइजेशन को ज़रा ज़्यादा ही मतलब फोकस करते हैं। मतलब बात भी सही है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। सो ये भी क्या है कि इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ये भी क्या है इसका इशू, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर देखिए, फिर है नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑन सेंटर। मतलब इनको जो फंड वगैरह है समझो सेंटर से ही मिलेगा, इसलिए वो उन पर निर्भर है। डिले इन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर बाय डिपार्टमेंट्स। और जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, जो बताना है, वो भी क्या होती है, उसमें भी डिले किया जाता है। ओके, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, हर जगह ये आपको मिलेगा ही, ज़्यादातर बॉडीज़ का यही मसला होता है। ओके, और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी ज़्यादातर बॉडीज़ में आपको पाई जाएगी, मिलेगी। तो आप ये भी पॉइंट कर सकते हैं नोट्स, मतलब आपको रिलेट करके चीज़ें याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं, राइट। लैक ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल डेटा विच एग्जिस्ट इन सिलोस। मतलब सिलोस के माने आइसोलेशन में, मैंने अलग अलग तरीके से। तो ये भी है कंप्लीशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल डेटा, जो भी मतलब मिनिस्ट्री में काम चल रहा है तो उनका जो कंप्लीशन है, जो उनका पूरा इन्फॉर्मेशन है, उसमें भी क्या है, लैक है, मतलब कमी है, ये बोलना चाहिए। सब आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, अलग अलग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और डेटा एक तरह से इंटीग्रेट नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। ओके, फ्रीक्वेंट लिटिगेशन अगेंस्ट दी ऑर्डर्स ऑफ सीआई। मतलब इसके अगेंस्ट ही क्या होता है, लिटिगेशन, मतलब लोग क्या करते हैं, फाइल कर लेते हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब देखिए, एक तरीका है वे फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड, यानी मतलब सोल्यूशन दे एक तरह से आप, वो भी पूछा गया है। सो अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, मतलब ये अकॉर्डिंग टू रहा तो इसके मुताबिक बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग यानी अकॉर्ड के मायने होता है कोई चीज़ किसी को देना, मतलब कोई स्टेटस देना, कोई टाइटल देना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको देना चाहिए, अभी स्टेचुटरी बॉडी है, राइट। सो डेडिकेटेड वर्कफोर्स होना चाहिए, ये भी समझने वाली बात है। ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक बिग डेटा एनालिटिक्स। तो जो स्टाफ है, जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, उनको भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, एक तरह से डेटा कलेक्ट करने के लिए, इस तरीके से बोलना चाहिए। सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू रिड्यूस डिले इन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। सो क्या है, सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स यानी अगर अच्छा काम करे तो उससे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वरना पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ओके, तो ये इस तरीके के मतलब डिले को कम कराने के लिए ये इस वजह से इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन यानी डिसेमिनेट करना यानी इन्फॉर्मेशन को फैलाना। तो उसमें जो डिले हो रहा है उसको रोकने के लिए पनिशमेंट भी देनी चाहिए, और अच्छा काम करे तो रिवॉर्ड भी देना चाहिए। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कैन बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ स्ट्रेथन थ्रू एड्रेसिंग अबो कंसर्न्स। ओके, इफ स्ट्रेथन थ्रू एड्रेसिंग अबो कंसर्न्स। तो ये एक अच्छे से मतलब इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, अच्छा टूल बन सकता है हमारे गुड गवर्नेंस के लिए, अगर से हम जो ऊपर के कंसर्न्स है, जो भी इश्यूज़ है, उसको टैकल करते हैं, और जो वे फॉरवर्ड में दिया गया उससे हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। सो उसका हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट्स देखिए हम जो नोट कर सकते हैं, देखिए ज़्यादातर बॉडीज़ में आपको ये पॉइंट मिलेंगे। मैं बोल रहा हूँ जैसे डिले मिलता है आपको, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी मिलती है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन सेंटर, ये वाली चीज़ मिलेगी। और लैक ऑफ मतलब यहाँ पे लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेटा और लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये सारे पॉइंट्स है जो आप घुमा फिरा कर कहीं भी लिख सकते हो। कि तो हम वो उसी को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस आंसर बुकलेट के ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये भी पॉइंट आपको डिजिटलाइजेशन का जो पॉइंट है, ये भी आपको बार बार देखने को मिलेगा, राइट। फिर इसके बाद देखिए जो 10 ईयर, मतलब ये तो स्पेसिफिक बात हो रही है। तो ये सारी बातें थी। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू हिट दैट लाइक बटन, and I would like to know your opinion. What do you think, like after watching this video? Have you learned something or not? I just want to know. So I need your valuable comment there. Just like let me know what you think about this video, and should I continue this kind of series or not? I must know this. Okay, I want to know this. Okay, so आपका कमेंट कीजिए, वैल्यूबल कमेंट, कि आपको क्या लगता है, मतलब वीडियो अच्छे बन रहे हैं या नहीं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्या आप आपके जो आंसर राइटिंग में उसको इम्प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।